ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰੈਸਲਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਸਮੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਜੇਤੂ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਤੇ 2 ਤਿਹਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਨਿਖਤ ਜ਼ਹੀਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਓਲੰਪਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਟੈਨਿਸ ਸਟਾਰ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਥਲੀਟ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਮੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਕੁਝ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ, ਗੀਤਾ ਫੋਗਾਟ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਬੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਵਾਨ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਪਣੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਖੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੀ ਕਈ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਕਟਰੈਸ ਉਰਮਿਲਾ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠेंगे ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਯੌਨ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ वो जल्द ही जड़ी है FIR दर्ज करेंगे। देखिए, पिछली बार भी
मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से मिला, भारत सरकार की खेल सचिव मिली, हमारे अधिकारी मिले, मैं भी कई घंटों तक, एक दिन नहीं 2 दिन उनसे मिला, उनसे बातचीत करके कमेटी का गठन किया गया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का, ओवरसाइट कमेटी का। उस कमेटी के सामने जितने लोगों को पेश होना था सबको अवसर दिया गया, और अवसर देने का मतलब यह है कि जिसको जो भी बात रखनी थी वो रखें। जब ये कमेटी बनी, उस कमेटी में भी महिलाओं को ही ज्यादा तादाद में रखा गया, और इसलिए था कि महिलाओं के सामने महिला अपनी बात खुलकर कर सकती है, और सबको अवसर दिया गया। अब उस ओवरसाइट कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी, वो पूरी रिकमेंडेशंस में जो एक पार्ट है उसमें यह भी था कि निष्पक्ष चुनाव हो, जो इनकी मांग भी थी खिलाड़ियों की। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को हमने वो अधिकार दे दिया। पहले भी ऐसा ही होता था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन करती थी। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कल अपनी एक कमेटी भी गठित कर दी, अडॉक कमेटी। अब वो अडॉक कमेटी 45 दिन के अंदर चुनाव करवाएगी, नई संस्था को चुनेगी, एक रिटायर्ड जज उसके कराने के लिए नियुक्त किए जाएंगे। ये पूरी कमेटी वहां पर सिलेक्शन हो, टूर्नामेंट का आयोजन हो, उसको लेकर निर्णय हो, और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर कोई भी खिलाड़ी हो, लड़का लड़की अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, उसका गठन भी करवा कर देगी। तो सारे कदम उसी दिशा में है, सारे कदम उसी दिशा में है, एक प्रक्रिया है। और प्रक्रिया जब कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके बाद जो जो कदम उठाने उस दिशा में कदम उठा रहे हैं। और जहां तक एफआईआर की बात है, ये धरने पर बैठने से पहले भी, या उस समय जब आंदोलन किया उस समय भी, उससे पहले भी आप किसी भी पुलिस स्टेशन पे जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते थे, उस पर कहीं रोक नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वरा भास्कर। आप सभी जानते होंगे, आपने देखा होगा किस प्रकार हमारे जो टॉप एथलीट्स हैं, रेसलर्स हैं, पहलवान हैं, वो एक बार फिर से मजबूर हो गए हैं अपने प्रोटेस्ट को शुरू करने के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट या यौन उत्पीड़न के खिलाफ, क्योंकि जो रेसलिंग फेडरेशन के हेड हैं बृजभूषण, उनके खिलाफ कई एक्यूजेशन और इल्जामात आए हैं यौन उत्पीड़न के, और अभी तक महीनों गुजर गए हैं पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस आदमी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, इनके खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ है, और 23 अप्रैल से वापस हमारे जो टॉप अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं वो दोबारा से विरोध प्रदर्शन करने पे मजबूर हो गए हैं दिल्ली में जंतर मंतर में। ये जो हुआ है ये हमारे देश और समाज के लिए एक बहुत खतरनाक और भयावह स्थिति है, और ये हमारे समाज का एक बहुत शर्मनाक सच भी दर्शाता है, और वो ये कि अगर इस देश में ऐसा शख्स यौन उत्पीड़न करे जो सत्ता के साथ किसी भी तरीके से संबंधित है, खास करके रूलिंग पार्टी में अगर वो है, तो उन्हें पूरी छूट है, उनके साथ कुछ नहीं होगा। हमने यही चीज उन्नाव में भी देखी, और यही चीज दोबारा हो रही है इस केस में जो रेसलर्स हैं और पहलवान हैं उनके साथ। मैं ये नहीं कहूंगी कि इन पहलवानों की बात इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि ये इंटरनेशनल एथलीट हैं, इन्होंने प्राइज जीते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी हर पीड़ित व्यक्ति की आवाज जरूरी है, उनकी कहानी जरूरी है, और हर पीड़ित का इल्जाम जो है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। पर मैं ये भी जरूर कहूंगी कि अगर हमारे अंतर्राष्ट्रीय एथलीट्स का ये हशर है, अगर उनका ये हाल है, तो आप सोचिए कि एक आम लड़की, एक आम पीड़िता या एक आम इंसान, उनकी क्या हालत होगी। कैसे इस देश में कोई यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा सकता है अगर हमारे टॉप इंटरनेशनल जो एथलीट्स हैं, स्टार्स हैं, उनका ये हाल है। और मैं ये भी कहूंगी कि ये सरकार जो राष्ट्रवाद का इतना ढोल पीटती है, इतना ढोंग करती है, इस सरकार के नेताओं को जब ये एथलीट्स अवार्ड्स जीत के आते हैं तब बड़ी खुशी खुशी ये उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती इनसे मिलने में, इनसे बात करने में। लेकिन अब जब इतना संगीन जुर्म हुआ है, जब इतनी संगीन इल्जामात सामने आए हैं, तब कोई भी सत्ताधारी पार्टी का नेता, रूलिंग पार्टी का कोई नेता इनसे बात नहीं करना चाह रहा। अभी तक बृजभूषण ने न इस्तीफा दिया है, न उसे हटाया गया है, और अभी भी उसको बचाया जा रहा है एक तरीके से, और केस दर्ज नहीं हुआ है। तो ये क्या
ये क्या दर्शाता है? मैं इन सारे पहलवानों को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी। आपने जो अपनी आवाज उठाई है वो बहुत बहादुरी का काम है, और इसके लिए न सिर्फ आने वाली एथलीट्स की पीढ़ियां, लेकिन आने वाली पीढ़ियों में जो लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, वो आपको बहुत आदर सम्मान से याद करेंगे। वो शुक्रगुजार होंगे आपके कि आपने अपनी आवाज उठाई है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अपील करूंगी आप सबसे कि प्लीज इन हमारे जो एथलीट हैं इनका समर्थन करें। ये जो कॉज है ये सिर्फ इनका कॉज नहीं है, ये हमारे पूरे समाज का कॉज है। तो अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी देशभक्ति है, थोड़ी सी भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, थोड़ी सी भी इंसाफ की भावना है, तो जरूर हमारे इन पहलवानों का जो विरोध कर रहे हैं यौन उत्पीड़न के खिलाफ, जरूर उनका समर्थन करिए। बहुत शुक्रिया। नमस्कार। इस देश की बेटी और आप और मेरे घर में बैठी हुई हर एक बेटी और बहन, सबकी तरफ से आज आपसे बात कर रही हूँ। आज तीसरा दिन है जब हमारे देश की वो बेटियां जिन्होंने इस देश को मान सम्मान और कई मेडल्स लाए, वो बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हुई है, रास्ते पर धरना लगा के बैठी हुई है ताकि उनके साथ न्याय हो, न्याय की भीख मांग रही है। ऐसे देश में जहां पर देवी जैसा दर्जा दिया जाता है हर एक लड़की को, हर एक औरत को, क्या ये सही है कि ये लड़कियां जिनके लिए इतनी मुश्किल होगी, किसी भी लड़की के लिए ये बात बाहर समाज में आकर मानना इसको कि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है, ये बहुत बड़ी बात होती है जब एक लड़की आवाज उठाती है। आज ये लड़कियां आवाज उठा रही है अपने क्षेत्र में हुई सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में। कल को ये सारी चीजें दूसरी लड़कियों के साथ भी हो सकती है, कई अन्य जगहों पे हो सकती है, दूसरे क्षेत्रों में हो सकती है। ये लड़कियों के ऊपर अगर आज न्याय नहीं हुआ तो बहुत बहुत देर हो जाएगी। और मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि ये लड़कियां जब वो मेडल्स लेकर आती हैं और हम में से हर कोई उनके बारे में गौरव के शब्द निकालता है, उनके साथ सारे मिनिस्टर आगे पीछे भागते हैं ताकि उनके साथ फोटो निकाल के ट्वीट कर सके, आज वो सब कहाँ हैं? वो सब मीडिया के लोग कहाँ हैं जब छोटी छोटी चीजों को बड़ी बड़ी खबरें बनाकर लोगों तक पहुंचाते हैं? क्या ये मीडिया का कर्तव्य नहीं है कि ये जो इतनी बड़ी न्यूज है वो हर एक लड़की के लिए आज न्याय मांग रही है तो उनको देश के सामने लाए? और सबसे महत्व की बात, मैं गृह मंत्री और खेल मंत्री से नम्रतापूर्ण निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपया इन लड़कियों को न्याय दे, उनकी गुहार सुने, क्योंकि ये उनके कानों के लिए है। क्योंकि जब आप उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो इस फील्ड में या किसी भी अन्य फील्ड में बेटी बचाओ इस तरह के नारे देने का क्या मतलब बन जाता है? तो कृपा करके इनके इस न्याय की गुहार को सुनिए और जल्द से जल्द उन तक अपना न्याय पहुंचाइए। जल्द से जल्द आप सब अपना सपोर्ट उन तक पहुंचाइए। जय हिंद।